who will be the first? Ishant, can we start with you? Yeah, sure. Yeah. Can you just Okay, brief me so about? we are so we are basically developing solutions for restaurant. So right now, restaurant don't have any option but to close. So what we do, we partner with them and relaunch it after knowing what they were missing. So we provide every solution that a restaurant requires, such as staff training, delivery, marketing, and a complete ecosystem. If I have to explain my company in 2 to 3 words, so we are OYO in restaurants. Okay, that's good. Okay, Avinash, what about you? So basically, we deal in coffee. We have varieties of coffee. So we deal in different coffee beans as well as making it functional. We have incorporated herbal flavors to it, like for example, turmeric coffee or ashwagandha coffee, banafsha coffee. So all of it is functionality based and Ayurvedic. Yeah. Amit Kumar, are you there? I think he's not. So you guys have any traction so far? कुछ मतलब धंधा वगैरह करा है, किसी को ज्वाइन करा है अभी तक? कैसे हम वर्क कर रहे हैं? यस, मैंने क्या नाम है जो अपना फर्स्ट आउटलेट को क्या नाम है सजेस्ट के साथ पार्टनर किया था, तो हम लगभग 4 मंथ्स पहले उनका जो रेवेन्यू था लगभग 60,000 का था। बट हमारे पार्टनर करने के बाद उसके बाद हमने उसको पूरा जब टर्न अराउंड करा, तो आज के टाइम में लगभग 1,50,000 का रेवेन्यू चल रहा है मंथ ऑन मंथ। बाकी हमारे साथ एक टेक एडवाइजर एडेड है जो एक यूएसए के स्टार्टअप में सीटीओ हैं। एंड बाकी क्या नाम है, एक अभी मैंने अपने साथ टेक हेड को भी मतलब कंपनी में ऐड किया है, जो हमारा सारा टेक का वर्क देख रहे हैं। अभी कितना टाइम हो गया हमारे को कंपनी लॉन्च करे हुए? कंपनी लॉन्च मतलब वर्क तो मैं इस आइडिया पे लगभग 1 साल से कर रहा था। मतलब कभी रेस्टोरेंट में काम किया 3 महीने, उसके बाद सर्वे वगैरह करे। बट अगर प्रॉपर इस चीज की बताऊं तो लगभग 4 to 5 मंथ्स हुए हैं मैक्सिमम। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू अविनाश? सर मैंने अप्रैल में मतलब इस जनवरी में स्टार्ट करा था। तो वी डिड अ मार्केट ट्रायल फॉर 3 months एंड अभी मेरा रेवेन्यू इज ओवर 5 lakhs a month. Okay, that's great. Avinash, are you there now? You Good can afternoon to all of you. I think you are not in a good reception. Yeah, that's great. Good afternoon to all of you. Sorry, थोड़ा लेट हुआ ज्वाइन करने में. No issues, no issues. So this is Rajkumar from Bitson Innovation Private Limited. Okay. So we are into waste management solutions. Basically, we are a biotechnology company, and we are provide solution for organic waste. Okay. Like we can treat all the organic waste within the premises, or like where the waste generate, we can treat the waste at that point. So you have any traction so far? Sorry? You have any traction or revenue? Yes, we are in market since 2015, and year by year we are growing, and last year we closed 2.12 CR. 2.12 CR. That's great. That's good. Because I came to know a lot of bio startups who are dealing the same domain, and they are doing very massive of revenue like you are doing. Okay, but the market still have very much potential. Right. Yeah, so I'm very much interested in this area. So let me brief you about what is first funding, and that's after that let's start our meet. Okay, so let me just share, and you can have a look for our website. I hope you already gone through it. So basically, first funding, what is it? Is it visible to all? Yeah. Yes. So first funding is all about fundraising. Okay. We help you in every aspect of fundraising, and basically we are the social media for the startup founder and for the investors. Okay. Whenever you came on our platform, there is a login button there. You can see if you can join, you can create your profile, you can change your password. It's same like a LinkedIn. You can post your pitch decks. You can share your pitch decks to all the other founders, to all the other angel investors, to all the other HNIs and VCs. Okay, so basically it's a LinkedIn for startup founders. Okay, so it's a brief. That brief for, I think that's enough. And we have two programs called Pitch First and Raise First. And this session is a part of Raise First only.
So in Raise First, we just make you able to get funded. Okay, there is very much fundamentals. Okay, and every step has their rules. So if you are getting going to get a angel round or a pre-seed round or seed round or series A, B, C, X, there's n numbers. Okay, so every step has their own fundamentals and every investor has their own perspective for the startups. Some are looking for revenue, what your MRR. Okay, some are looking for their technology, some are looking for your team size, to team, what's the team is all about, what the idea is all about, what is target marketed. Okay, so basically we have more than 600 angel investors in our angel network in First Funding, and we have tied up with 100 plus VCs. Okay, in every sector. Either you are a delivery chain, either you are doing a that bio startup or whatever you can. Okay, so कहाँ से पहला स्टेप स्टार्ट होता है किसी भी फंड रेजिंग का? स्टार्ट विद पिच डेक. आई होप आप में से किसी ने पहले फंडिंग उठाई है अभी तक? किसी ने भी? किसी से भी? फैमिली, फ्रेंड्स, एंजल इन्वेस्टर, किसी से नहीं? ट्राई किया एक इन्वेस्टर के साथ मीट भी हुई है. एक इन्वेस्टर मीट हुई है. क्या रहा था उस मीट का? आप एक बार शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस? हाँ, मतलब मैक्सिमम आई थिंक 20 मिनट्स मेरे को मिले थे. तो फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स में सारा मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया था अपनी पिच डेक की हेल्प से. उसके बाद 5 to 10 मिनट में उन्होंने थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चंस थे वो आस्क करे एंड उसके बाद मीट क्लोज हो गई. मीट क्लोज हो गई और फीडबैक So, दिया था मैंने. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. व्हेन आई इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, व्हाट आई लुक फॉर. तो सेम पर्सपेक्टिव सेम ही होता है कि आपको कोई भी इन्वेस्टर सिर्फ पहले 5 मिनट में जज कर लेता है. मैं सिर्फ 5 मिनट में करता हूँ मैक्सिमम. उसके बाद मैं सिर्फ बंदे को देखता हूँ, उसकी डिग करता हूँ, उसके आइडिया को, उसकी टीम को, उसके एंथुसियाज्म को, कि वो बंदा कैसा है. आई इन्वेस्ट इन पीपल, आई इन्वेस्ट इन फाउंडर. ओके, आइडिया हर किसी को आ रहा है, एग्जीक्यूट उसे ही करना है, फाउंडर को. ओके, सो अगर आपकी मीट 10, 15, 20 मिनट में खत्म हो रही है, यानी आपके चांसेस कम है. अगर वो आपकी पिच डेक सुनने के बाद आपसे क्वेश्चंस ज्यादा कर रहा है, कोई भी फाउंडर या इन्वेस्टर, तो वहां पे आपके चांसेस बढ़ रहे हैं. ठीक है, अब चांसेस बढ़ेंगे कब? जब आपकी पिच डेक उसको क्लियर कर रही होगी, क्लियर एक मैसेज दे रही होगी कि क्या क्या चीजें हैं जो जा रही हैं. ठीक है, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, और अब तक आपने क्या किया है. राइट, तो बेसिक सारी चीजें हमें समझानी होती हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन, देन विल डिस्कस द Q&A. ओके, so is Rohit Sinha. Rohit, we'll introduce you after that PPT. Okay, if you have any question, you can just raise your hand in a between. Okay, so is it visible to all? Yes. Okay, तो सबसे पहले जो आपका पेज रहता है, दैट इज योर हेडलाइन. जो भी आपकी व्हाट इज कंपनी इज ऑल अबाउट, योर टैगलाइन, योर लोगो. ओके, जो भी आपका है, पहला पेज आपकी क्रिएटिविटी के लिए, बट ट्राई करो कि पहले पेज में आपकी कंपनी का नाम बड़े अच्छे से जा रहा हो. ठीक है, और दूसरे पेज में बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए, ठीक है, सीधा मुद्दे की बात पे आओ कि आप क्या कर रहे हो और क्या बनाना चाहते हो. ठीक है, दूसरी स्लाइड पे ही आपको बता देना है कि आपका स्टार्टअप कौन कौन सी मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. ठीक है, और आप उसमें कैसे सॉल्व करने वाले हो. और जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहे हो, आपको उस प्रॉब्लम को एक सिंगल लाइन में ही एक्सप्लेन करना है. अगर आप उसे एक सिंगल लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उस प्रॉब्लम को, तो यानी आपने प्रॉब्लम को भी ढंग से समझा ही नहीं है. उस पर आपको और मेहनत की जरूरत है. ठीक है, आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपको एक सिंपल सी, आई एम नॉट सेइंग कि आपको बिल्कुल यही लेआउट कॉपी करना है, आपको स्टेप से ही कॉपी कर ले सकते हो आप. ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी है और आप क्या करना चाहते हो अपने स्टार्टअप के साथ, स्टार्टअप क्या करता है, उससे क्लियर आ जाएगा एक आइडिया इन्वेस्टर को कि व्हाट यू आर डूइंग. ओके, सेकंड आता है कि देखो प्रॉब्लम है मार्केट में, हम क्यों आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं सोल्यूशन. ठीक है, सेम आपने 3 से 4 प्रॉब्लम बताई, सेम आप 3 से 4 उनके सोल्यूशन बताओ, प्रपोज करो कि आप कैसे कर सकते हो और आप ही क्यों कर सकते हो. ठीक है, आप उन्हें अपना विजन डिस्क्राइब करो, उन्हें कम्युनिकेट करो कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं और आप कैसे उसे आगे ले जा रहे हो. ठीक है, और बहुत ही क्लियर रहो और
स्मूथ जंप लो अपने इंट्रोडक्शन से अपने प्रोडक्ट तक। आपको अपने सोल्यूशन में अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करना है कि आपका प्रोडक्ट कैसे सोल्यूशन लेके आ रहा है, व्हाट इज योर प्रोडक्ट। ठीक है। तीसरा है आपका प्रोडक्ट और सर्विस। आप जब भी कोई स्टार्टअप बना रहे हैं, आपने या तो कोई प्रोडक्ट बनाया है या तो आपने कोई सर्विस बनाई है जिसके लिए आप फंडिंग उठा रहे हैं उसको स्केलेबल करने के लिए। आप यहाँ पे अपने इंट्रोड्यूस करो अपने प्रोडक्ट को। ठीक है। आपने सोल्यूशन, आपने प्रॉब्लम बता दी, क्या प्रॉब्लम है मार्केट में, आपने उसका सोल्यूशन दे दिया। ठीक है। अब आपको बताना है कि सोल्यूशन आ कहां से रहा है। ठीक है। अपने प्रोडक्ट और सर्विस को दो। अगर आप ये स्लाइड, चौथी स्लाइड, इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है, इसको नहीं बना पा रहे हो, अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है अभी, ठीक है, या एमवीपी रेडी नहीं है, तो आपको अपने आप को रीएबिलिट करना है कि आपको सबसे पहले अपना एक मिनिमम प्रोडक्ट बनाना है, एमवीपी बनाना है। यू ऑल नो अबाउट द एमवीपी? ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है। अपने प्रोडक्ट को आप जैसे जस्टिफाई करना, और जो भी आप जस्टिफाई करो एक सिंगल लाइन में। सेम मैं आपको एक एयरबीएनबी की एग्जांपल देता हूँ। एयरबीएनबी की पिच डेक थी जिससे उन्होंने पहली फंडिंग उठाई थी 2009 में। सिंपल सा एक लाइन में जस्टिफाई किया था वो करते क्या है। आपको भी अपने प्रोडक्ट को एक ही लाइन में जस्टिफाई करना है कि आप करते क्या हो। बाद में आपके बहुत सारे वर्टिकल्स ज्वाइन हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट में, पर आपका मेन विजन एक है। जैसे पेटीएम का एग्जांपल ले लीजिए। पेटीएम इज अ पेमेंट गेट, पेमेंट ऐप, जहां से आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने बाकी चीजें ज्वाइन कराई हैं उसमें। ठीक है। तो जब आप अपनी सीड या फिर एंजल राउंड लेने जाएंगे, जो आप अभी लेने वाले हैं, तो उसके लिए आप अपने प्रोडक्ट को एक सिंगल, एक ही डायरेक्शन में आपको फ्लो करवाना है। ठीक है। तीसरे स्टेप में आपको अपनी टाइमलाइन बतानी है कि अभी तक आपने कैसे कैसे चीजें बढ़ाई हैं, क्या क्या किया है। ठीक है। और सबसे पहले आपने कंपनी स्टार्ट कब की थी, अब तक आपने क्या अचीवमेंट करा है। ठीक है। आज के दिन में आप कहाँ हो और आगे आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपने अपना आइडिया स्टार्ट क्यों किया। ठीक है। स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रेजेंटेशन में, इधर वो रिटन हो या फिर वो वर्बल हो। ठीक है। उसके बाद टाइमिंग, कि आपकी टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सेम जैसे आपने पेटीएम का एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं। पेटीएम के लिए टाइमिंग बहुत क्रिटिकल थी जब उसने पेटीएम को लॉन्च किया और उसको थोड़ा हेल्प मिलके डिमोनेटाइजेशन से, कि तब इंडिया स्टार्ट हो रहा था। ठीक है। सबसे पहले ये मोबाइल गेट एप्लीकेशन वगैरह कोरिया में स्टार्ट हुई थी, साउथ कोरिया में, सिर्फ मोबाइल रिचार्जिंग वगैरह इन सब चीजों के लिए। उसके बाद फ्री चार्ज ने जब फंडिंग उठाई एमएक्स से, ठीक है, पेटीएम ने फंडिंग उठाई बहुत सारी जगहों से, तो तब उसके बाद वो टाइमिंग सही बन गई। सही प्रोडक्ट को सही टाइमिंग की बहुत जरूरत होती है। ठीक है। तीसरा आपका ट्रैक्शन। आपको अपने ट्रैक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जैसे अभी बताया था मेरे को अविनाश ने कि दे आर डूइंग 5 lakhs MRR। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी, और आगे वाले फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं। ओके। अब बड़े अच्छे से ग्राफ में आपको अपने ग्राफ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए जाना है कि कोई भी देख के, एक लेमैन भी आराम से उसे देख के समझ पाए कि कंपनी कर क्या रही है। ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी टारगेट मार्केट को एक्सप्लेन करना है कि आपके कस्टमर कौन है, कौन लेगा, कंज्यूमर कौन है और कस्टमर कौन है, क्योंकि कई सारे बिजनेस में दोनों अलग अलग होते हैं, मैक्सिमम बिजनेस में एक ही होते हैं। आपका वर्किंग डोमेन क्या है, आप B2B जा रहे हैं, B2C जा रहे हैं, या B2B2C जा रहे हैं। ठीक है। आपको अच्छे से अपनी मार्केट को एक्सप्लेन करना है ताकि क्योंकि धंधा वहीं से आएगा आपका, और जहां से धंधा आएगा आपको उसी चीज के लिए काम करना है। ठीक है। ये भी सारी स्लाइड्स इंपॉर्टेंट हैं। और मोर ओवर आपको अपना टैम, सैम और सोम समझाना है। आई होप ये सबको मालूम होगा क्या होता है। टैम होता है आपका जो टोटल अवेलेबल मार्केट है, यानी वर्ल्ड वाइड मार्केट जो है आपकी प्रोडक्ट की। ठीक है। सैम होता है आपका सर्विसेबल मार्केट, यानी जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया में कितना आप सर्विस दे पाएंगे। ऐसे आप इंडिया में है तो इंडिया में कितनी मार्केट है जिसको आप ले सकते हैं। ठीक है। और सोम होता है जिसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं, आप कितना परसेंट मार्केट को ऑब्टेन कर सकते हैं कितने टाइम में। ठीक है। इसको आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये स्लाइड देख के ही बंदा आप में इन्वेस्ट करेगा। मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको दोबारा बताऊंगा अभी। फिर आती है आपकी टीम। टीम को आपको जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको अपने टीम मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करना है सबको।
और कैसे कैसे वो क्या करते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, सब कुछ बताना है। और यहीं पे अपनी स्लाइड को आपको एंड कर देना है। इसके पीछे आप एक आस्क मांग सकते हो अपनी, ठीक है, इन दोनों स्लाइड्स के बीच में आप आस्क रख सकते हो और उसमें आप बता सकते हो कि आप जितना पैसा ले रहे हो कहाँ कहाँ यूज करने वाले हो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये स्लाइड जो है अपने साइज ऑफ मार्केट है, इसमें जो आपका सोम होता है ना कि आप दिखा रहे हैं कि आप 10, इस फॉर एग्जांपल जिस स्लाइड में बता रखा है कि 10 मिलियन ये अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप में इन्वेस्ट करेगा कोई बंदा, वो देखेगा, वो इस अमाउंट को सीधा 10 से डिवाइड कर देगा। जैसे मैं करता हूँ, मैं इस अमाउंट को 10 से डिवाइड कर दूंगा, फिर आ जाएगा अमाउंट 1 मिलियन, यानी 10 लाख रुपए। मैं आपको अगर 20 लाख दे रहा हूं और आप एक साल में 10 लाख ही कमा रहे हो, ठीक है, तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो सोम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपकी मार्केट में, आप कितना धंधा बनाने वाले हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। सोम में रहता है कि आप अपना धंधा कितना बनाने वाले हो, उससे मालूम चलता है इन्वेस्टर को कि कितना पोटेंशियल है स्टार्टअप में और कहां तक जा सकता है। और उसका 10% पे ओवर इन्वेस्ट होता है सिर्फ, कि अगर 10% भी कर ले चलो हमारा पैसा बन जाएगा। तो ये पिच डेक के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। और पिच डेक आपको छोटी बनानी चाहिए, नॉट मोर देन 10 to 12 स्लाइड्स, दैट्स इनफ, ठीक है। हर एक स्लाइड में मिनिमम वर्ड्स, मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन। आपकी स्लाइड सबसे ज्यादा बता रही हो अपनी स्टार्टअप के बारे में, फाउंडर्स के बारे में, मार्केट के बारे में और आपके अब तक किए हुए धंधे के बारे में, ठीक है। तो ये पूरा अपना रहता है फंडा पिच डेक बनाने का, ठीक है। अब एक बार छोटा सा Q&A स्टार्ट करते हैं, फिर आपको फंडिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप अपने सॉल्व करवा सकते हैं। ओके। तो किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक पिच डेक से रिलेटेड की, और क्या आपको किसी स्लाइड से कुछ पूछना है या फिर और कुछ? सर मेरे को एक चीज ये जाननी है कि जो वैल्यूएशन होती है कंपनी की, या फिर एक किस लेवल पे जा सकते हैं, तो वो किस हिसाब से जस्टिफाइड होती है? ये लास्ट सेशन इज ऑल अबाउट द वैल्यूएशन ओनली। ओके। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या रहता है। वैल्यूएशन आपकी रहती है कि आप जो एमआरआर कर रहे हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, उस पे डिपेंड करती है, आपके टोटल अभी तक के ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करती है, आपकी स्केलेबिलिटी पे डिपेंड करती है, आप कितने जल्दी कितना बड़ा हो सकते हैं, ठीक है, आप कितनी मार्केट को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बिहाफ पे आपकी वैल्यूएशन निकलती है। कई बार पिछली वैल्यूएशन के हिसाब से भी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके केस में ले लेते हैं, ठीक है, आप मंथली 5 लाख रुपए कर रहे हैं, ठीक है, आपका स्टार्टअप अभी कहाँ कहाँ कितना ग्रो कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी आप 100 कस्टमर को साथ कर रहे हैं, ठीक है, आप 5 लाख का धंधा कर रहे हैं, ठीक है, वहीं आप फंडिंग लेते ही 10 लाख कस्टमर कर लेंगे और 5,000 करोड़ का धंधा स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपके आ गया टोटल मार्केट का साइज, ठीक है। अब आपको जो फंडिंग मिलेगी वो किस बेसिस पे मिलेगी? अगर आपका है स्केलेबल इतना ज्यादा, तो आपका जो टोटल ईयरली रेवेन्यू है अभी तक का, फॉर एग्जांपल दैट इज 60 लाख, ठीक है, आपकी वैल्यूएशन जो निकल के आएगी, आपकी 6 करोड़ से 12 करोड़ के बीच में आपकी वैल्यूएशन निकल के आ सकती है, ठीक है। ठीक है, 10 to 20 टाइम्स ऑफ योर वैल्यूएशन। अगर तो आपका है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, ठीक है, वहां पे स्केलेबिलिटी थोड़ी सी कम आती है। जहां स्केलेबिलिटी फास्ट होगी वहां वैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय 10 to 20 टाइम हो जाती है अपने टोटल रेवेन्यू से। स्केलेबिलिटी थोड़ा धीरे है, वहां 5 टाइम्स तक रह सकती है। तो सर मेन चीज ये है कि जो अब स्केलेबिलिटी की बात करूं, बीइंग जो स्टार्टिंग में सीड फंडिंग वगैरह कह लो, कुछ भी कह लो, कोई इनिशियल है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ही उतनी है कि जिसकी वजह से आप एक एक छोटे स्केल पे कर रहे हो, तो किसी तरह क्या वो हम स्केल बढ़ा सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं अप्रैल में मैंने स्टार्ट करा था, ठीक है, फ्रॉम अप्रैल टिल अक्टूबर तक मेरी जो सेल है इट्स बीन कांस्टेंट, बिकॉज बूटस्ट्रैप्ड है और वही साइकिल घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। तो वो स्केलेबिलिटी मैं चाहकर भी नहीं लेके आ सकता, बिकॉज उसके लिए मेरे को एक फंड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखिए, फंड की आपको नीड ही तभी पड़ती है, फंड की आपको जरूरत ही तभी पड़ती है जब आप स्केलेबल हो, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको एक्सपेंशन करना है। आपको कभी कोई फंडिंग इसलिए नहीं देगा कि आपको अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को हाँ जी। रन करना है, ठीक है। तो उस केस में आपको इस देखिए, हर मैंने आपको बताया था हर फंडिंग राउंड का फंडामेंटल्स अलग होते हैं। आपको बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए जो आपको फंडिंग मिलती है वो मिलती है आपको सीड राउंड मिलता है, आपको कई एंजल मिल जाते हैं, प्री सीरीज ए तक इस तरह की फंडिंग मिलती है।
सीरीज ए मिलता है जब आपका प्रोडक्ट मार्केट रेडी है। हम्म। सीरीज ए मिलता है आपको अपना प्रोडक्ट को और बेटर बनाने के लिए, बी मिलता है और बड़ी मार्केट को कवर करने के लिए। ठीक है, तो जब आप सीड उठा रहे हो, जैसे इनिशियल फाउंडर्स, तो आप एक बार राउंड उठा लोगे, आपको खुद ही फंडामेंटल्स मालूम चल जाएंगे कि अगला कैसा होगा, क्या होगा। ठीक है, जैसे हमारे कुछ लास्ट सेशंस में हमने टर्म शीट डिस्कस करी थी, टर्म शीट में क्या क्या होता है, ठीक है, क्या लीगलाइजेशन है, ये सारी चीजें हम सिखा रहे हैं। ये क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि देखिए हम हर क्वार्टर में पिच फर्स्ट कराते हैं, आई होप यू ऑल नो अबाउट इट। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका सेम क्वेश्चन आया था, कोई भी फाउंडर कुछ भी वैल्यूएशन पे फंडिंग मांग रहा है, कोई 300 करोड़ मांग रहा है, कोई 400 करोड़ मांग रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी फंडिंग। लास्ट पेज फर्स्ट में हमने 20 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया था, ठीक है, इनवाइट किया था। उसमें से 12 को फंडिंग मिली थी, 8 को सिर्फ इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि उनको अपनी वैल्यूएशन का आइडिया नहीं था। उनका प्रोडक्ट वगैरह सब सही था, उनको अपनी वैल्यूएशन का आइडिया नहीं था। तो वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पिच डेक में आपको क्या दिखाना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पिच डेक में इन्वेस्टर आपको जल्दी जल्दी आपको बताना, आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आपको सिर्फ बताना आपका आइडिया क्या है, प्रोडक्ट क्या है, धंधा क्या किया है अभी तक, और क्या करने वाले हो। 4 क्वेश्चंस के आंसर देने सिर्फ। ठीक है, और वैल्यूएशन, देखिए स्टार्टअप की वैल्यूएशन निकालना कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ना तो यहाँ पे एसेट वैल्यूएशन निकलती है, ना यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकलता है, यहाँ पे ना यहाँ पे अदर फॉर्मूलाज लगते हैं इकोनॉमिक्स के, क्योंकि कोई बिजनेस, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है ना कोई। आपके पास क्या है? आपके पास टीम है, आपके पास आइडिया है, इट्स ऑल अबाउट यू। तो आज आपने से दो अगर 10-12 साल पहले कोई ओला में पूछता कि ओला को मैं 1 करोड़ रुपए क्यों दूंगा, नहीं देता कोई। आज की डेट में अगर भावेश अग्रवाल किसी से मांगेगा 100 करोड़ भी, खुशी खुशी में दे देंगे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट स्केलेबिलिटी, कि कितने बड़ी आप ऑडियंस को कवर कर सकते हो। ओके, और एक और चीज, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर इनिशियल स्टेज पे अगर किसी को बड़ा चंक देना पड़े तो शुड वी डू इट और नॉट? फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेरे को कहता है कि यार मेरे को ना 25% चाहिए आपके, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट राउंड, तो क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये सब्जेक्ट टू मैटर है। ठीक है, ओके। अगर तो जो 25% लेके वो बंदा आपको इतना पैसा दे रहा है, ठीक है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को सीरीज ए तक ले जा सको। ठीक है, प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लो, मार्केट रेडी कर लो, टीम बना लो अपनी। ठीक है, प्लस वो बंदा आपको अपार्ट फ्रॉम मनी और भी हेल्प कर रहा है, स्ट्रेटेजिक हेल्प भी कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो टेक्निकल बंदा है, ठीक है, वो वहां पे आपकी हेल्प कर रहा है, तो आपको एक को फाउंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीटीओ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक टेक टीम से काम करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल वो फाइनेंस का बंदा है, तो आपको वो फाइनेंस को मैनेज करने में हेल्प कर सकता है, फाइनेंशियल बनाने में हेल्प कर सकता है। जैसे नेक्स्ट सेशन हमारा हाउ टू क्रिएट फाइनेंशियल मॉडल फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि पिच डेक के साथ आपके एक्सपेंसेस भी आपको दिखाने होते हैं। ठीक है, उसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, तीसरी चीज, वो बंदा आपके लिए लॉन्ग टर्म रुकने आया है, क्योंकि 1/4 पार्टनर बन गया वो आपका। अगर वो ये बोल दे अगले राउंड में आप दोबारा अपना डाल रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, और वो कह रहा है कि नहीं भाई मैं अपना आधा मैं बेचूंगा, तो आपके हाथ में तो कुछ आएगा ही नहीं, है ना। तो ये चीजें सारी डिपेंड करती हैं कि आप किससे फंडिंग ले रहे हो और वो किस विजन के साथ कंपनी में आ रहा है, इतने बड़े राउंड के साथ आप दे रहे हो। ऑब्वियसली जो आइडियल कंडीशन रहती है फॉर इनिशियल स्टेज, दैट इज 15-20% जाता है, अंडरस्टूड, जब आपका आइडिया एमवीपी पे है या डेवलपिंग पे है। ठीक है, पर एक बार आप अपना रेवेन्यू करना शुरू कर दो, उसके बाद आप, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू है, सब है, तो आप उसके बाद तक नहीं दे सकते। 25% टू हाई स्टिल नाउ, बट डिपेंड कि किससे ले रहे हो और किस चीज ले रहे हो। ऑल राइट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और सर एफएमसीजी में एक बेसिक, जैसे बिकॉज मैंने सुना है कि टेक वगैरह में थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा जल्दी बूम मारता है, तो एफएमसीजी में एक क्या मल्टीपल रहता है, एक एन ऑन एन एवरेज? मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल स्पेसिफिक। आप बना क्या रहे हो, आप ये बताओ पहले, मैं फिर बताता हूँ आपको। सब मैं कॉफी, सब बेसिकली कॉफी है ना आपका? हाँ जी, कॉफी जो है एक हैबिट वाली चीज है। एग्जैक्टली, ठीक है, एंड बहुत बड़ी मार्केट है। इसमें धंधा बनता है, हाँ जी। जहाँ हैबिट लग रही है लोगों को, यहाँ पे आपका रिपीट कस्टमर आ रहा है। ठीक है, कॉफी बंदा डेली पिएगा। नेस्कैफे बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जितने भी आप एफएमसीजी की ले लो, जो भी ले लो, इवन तो बिस्लेरी ले लो, 1600 करोड़ की कंपनी आज तक फंडिंग नहीं उठाई। ठीक है, धंधा है 1600 करोड़ का, सिर्फ वैल्यूएशन नहीं है, वैल्यू क्रिएशन है उसका। तो यहाँ पे क्या रहता है कि आपके रिपीट कस्टमर कितने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट से आपका, देखो D2C आप जा रहे हो, ठीक है, सिर्फ ब्रांड बनेगा, रेवेन्यू वहां से आपका प्रॉफिट नहीं आएगा इतना, सिंपल सा प्रोडक्ट वो बेचोगे। धंधा आपका बनेगा जब आपका शेल्फ
पे बिकेगा या फिर अमेजोन वगैरह से बिकेगा, कहीं बिकेगा और बल्क में बिकेगा। 5,000 कस्टमर है, ठीक है, पर 5,000 कस्टमर कॉफी लेंगे तो आपसे लेंगे। हर्बल कॉफी किसी को चाहिए तो उसे याद आना चाहिए आपका ब्रांड, यानी आपने रिपीट कस्टमर कितने बना लिए। एफएमसीजी में बड़ा होने का या D2C में बड़ा होने का सिंपल सा फंडा है कि आप अपने ब्रांड को या आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हो और उनको फीडबैक से आप रिपीट कर रहे हो। ओके, इस मार्केट में स्केलेबिलिटी का फंडा है ये। अब इसमें सर एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मेरे पास क्या है कि मैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों चीज जा रहा हूँ। मैं खाली एक स्पेसिफिक नहीं जा रहा, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल D2C, बिकॉज एंड ऑफ द डे एफएमसीजी में आपके पास ज्यादा स्कोप होता है अगर आप ऑफलाइन हो, क्योंकि एक डेली बेसिस पे नीड है। तो अब उस केस में मैंने ऑनलाइन कस्टमर तो मेरे को पता है कि यार मेरे पास इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, इतने कस्टमर्स हैं, इतने रिपीट है, बट एक ऑफलाइन का नंबर कैसे दे? बिकॉज एंड सेकेंडली क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्टर है वो ऑफलाइन को थोड़ा आज के टाइम पे एक नेग्लेक्ट कर रहा है। नहीं, मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। जैसे आपका ऑनलाइन ब्रांड है, ठीक है, आपने ऑनलाइन से अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया, ठीक है, पर ब्रांड असली में बनता कब है पता है आपको? जब अगर मैं अविनाश की कॉफी को ऑनलाइन देखा, मैंने गो थ्रू कर रहा हूँ, लिंक्डइन पे देखा, ऐड देखा, कुछ भी देखा, या स्विगी पे जब मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो स्विगी पे आपने ऐड चला रखा है, एक्स्ट्रा ऐड कर लो, इसको भी ले लो, ठीक है, यहाँ पे आपने किसी की डिलीवरी के साथ पार्टनर कर रखा है कि इसका टेस्ट सैंपल दो। और उसको जब मैं अपनी कुछ चीजें खरीदने जा रहा हूँ कहीं पे भी, इधर ऑनलाइन जा रहा हूँ, जैप्टो से ऑर्डर कर रहा हूँ या कहीं और से भी कर रहा हूँ, आपका ब्रांड मुझे वहां पे दिखे, अगर वो मुझे वहां दिख रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग तो बढ़िया चीज है भाई। मैंने ऐड भी देखा था, इसको मैंने कहीं ना कहीं ऑनलाइन देखा था, ये यहाँ भी दिख रहा है, ऑफलाइन में भी दिख रहा है मेरे को, तो यार कुछ तो है, बढ़िया चीज है। ट्रस्ट फैक्टर ऑफलाइन ज्यादा जल्दी बनता है। ओके, ठीक है, मैं शेल्फ पे देखूंगा ना उस चीज को तो मैं दुकानदार को पकड़ता हूँ अगर खराब निकला तो। एग्जैक्टली सर, बट एज पर इन्वेस्टर्स जो मैंने करी है, मतलब मेरी कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, दे प्रेफर कि कोई एक ब्रांड जो आ रही है दैट गो फॉर D2C पर्टिकुलरली। देखो D2C का मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया, बड़ा करना है ब्रांड ना तो D2C जाओ। हाँ, D2C से धंधा नहीं बनता कभी, टिकट साइज था बड़ा नहीं है। नायका का धंधा इसलिए बना है क्योंकि नायका का टिकट साइज बड़ा है, नायका 3-4 हजार की चीज बेच रही है, ठीक है। जोमेटो का भी आप देख लो, जोमेटो 300 रुपए की चीज बेचता है तब जाके उसे थोड़ा प्रॉफिट होता है, वरना वो लॉस में है। ठीक है, आप कितने की कॉफी बेचोगे एक साथ? 1,000 रुपए की, 1,500 रुपए की? नहीं, आप वो बंदा खरीदेगा 100-150 वाली ना। एग्जैक्टली। ठीक है, आप अपना मॉडल चेंज कर दो, D2C पे रहो, नो इशू। बोट है, D2C ब्रांड है, पर शेल्फ भी अवेलेबल है अब। ठीक है, एफएमसीजी नहीं है, दूसरा ब्रांड है, पर D2C से स्टार्ट हुआ। मार्केटिंग अपनी D2C से करो, बाकी अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा बना लो कि हर जगह आप अवेलेबल रहो। ठीक है, आपको अपना लॉजिस्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इस चीज में, आपको अगर इसमें ऑफलाइन में भी स्टेबल होना है, ठीक है, और स्केलेबल होना है, तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है ट्रेडिशनल पे भी जा सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए, ठीक है, रिटेलर तक जा रहा है तो उनका मार्जिन कम होता रहेगा, आपका धंधा कम हो जाएगा, फिर आपको हमेशा लगेगा यार D2C में भी इतना कमा रहा हूँ, वहां से भी इतना आ रहा है। ठीक है, तो आप अपना एरिया धीरे धीरे बढ़ाओ। जैसे आपने दिल्ली एनसीआर में अपना D2C ब्रांड स्ट्रॉन्ग कर लिया, यहाँ के स्टोर्स पे भेजना शुरू कर दो। ठीक है, सेम फिर आपने अपने D2C ब्रांड को महाराष्ट्र में स्ट्रॉन्ग करा, उस मार्केट को कैप्चर करो जहां से आपको ऑर्डर रिपीट आ रहे हैं। D2C से आपको मालूम चल जाएगा कि वहां के लोग मेरे को वो कर रहे हैं, आपको मार्केट का फीडबैक मिलेगा, वहां के शेल्फ में पहुंचाना शुरू कर दो। ठीक है, दिस इज हाउ यू वर्क। और क्वेश्चंस? थैंक यू फॉर द आंसर्स। अमित, यू हैव एनी क्वेश्चन? नो, फाइन। ओके, ठीक है, तो मैं थोड़ा पिच फर्स्ट के बारे में बताता हूँ आपको। सो पिच फर्स्ट 3.2, इट्स ऑल अबाउट meeting a right investors. We are inviting only 100 startups and 100 investors and 200 angel investors. ठीक है, तो ये पुराने ट्रेडिशनल की तरह ही रहेगा कि जहां पे आपको एक स्टेज दी जा रही है और आप पिच कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल चांस मिलेगा पहले हर एक इन्वेस्टर से अपने सेगमेंट के इन्वेस्टर्स को पिच करने का, इंडिविजुअली बैठ के ऑन द टेबल। ठीक है, उनके पास लैपटॉप होगा, आप हमारी टीम उनके पास ले जाएगी और हर एक इन्वेस्टर को आपको इंडिविजुअली मिलवाएगी। ठीक है, उसके बाद जो टॉप 10 स्टार्टअप्स होंगे दे विल गेट अ चांस टू पिच इन ऑन स्टेज। ठीक है, उसके बाद आपका ओवर द ड्रिंक्स you can meet all the investors whoever you want, you can create a network because we are a social networking site. ठीक है, you can just create your ID, you can just share your links, all you can.
ठीक है। तो आपको यहाँ पे 200-300 लोगों के साथ जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी बड़े वीसीज हैं आपके इंडिया में, आपको अभी सीड राउंड जैसे नहीं दे रहे हैं तो बाद में उनकी जरूरत पड़ेगी नेटवर्क की। आपको अभी एंजल दे रहा है पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब नेक्स्ट पैसा उठाओगे तो वहां तो आपको जरूरत पड़ेगी फॉर ऑब्वियस। ठीक है, तो इसके लिए आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ती है हमेशा। फंडिंग आपको तभी मिलती है जब बंदा आपको जानता है। पैसे का खेल सारा ट्रस्ट का है। अगर उसने आपको देखा है, ठीक है, तो अगर उस बंदे ने आपको देखा हुआ है तो आप पे थोड़ा पैसा लगाएगा। वो पूछ लेगा कि हाँ भाई ये स्टार्टअप मैंने देखा था नवंबर में, अभी मेरे पास आया अगले नवंबर को, तब इसका धंधा इतना था, अब इसका धंधा इसने इतना कर लिया, बंदे में दम है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट जो मेरे अकॉर्डिंग है नेटवर्किंग। दूसरा पॉइंट, आपको सारे इन्वेस्टर्स के फंडामेंटल पता चल जाएंगे उस दिन, जितने भी लोग हैं। दे आर बैंकर्स ऑल्सो, क्योंकि इवेंट जो स्पॉन्सर कर रहा है बैंक कर रहा है। ठीक है, सो दे आर गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो, क्योंकि HSBC इकलौता ऐसा बैंक है जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है VCs का कोलैब करके। क्योंकि VC जहाँ पे पैसा उठाते हैं, कोई VC का खुद का पैसा नहीं होता, वो भी दूसरों का पैसा ही मैनेज कर रहे होते हैं। हम दूसरों का पैसा मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा पैसा तो होता है जो खुद का लगाते हैं। हमारे पास तो खुद का पैसा 1, 2, 3, 4 करोड़ ही होता है, उसको ही लगाते हैं। बाकी हम दूसरों का पैसा मिला के वो 100, 200, 500 करोड़ बनता है। ठीक है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट, पूरे दिन का इवेंट होगा। ऑल विल गेट अ चांस टू पिच देयर स्टार्टअप। ठीक है, और व्हाट वी वांट, हमने ये प्रायर सेशंस इसलिए रखे हैं, पिच डेक बनाना, वैल्यूएशन सिखाना, फाइनेंशियल बनाना, ताकि वहां जाके व्हाट वी वांट कि जो 100 स्टार्टअप्स हम इनवाइट कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम गेट फंडेड। राइट। ठीक है, कि जो भी डिजायर वैल्यूएशन है, जो भी स्केलेबिलिटी है, जहां कमी लग रही है हमें स्टार्टअप के मॉडल में, आवर टीम इज देयर, विल सिट विद यू। ठीक है, विल रेक्टिफाई ऑल द थिंग्स, विल मेक श्योर कि 100 के 100 स्टार्टअप्स को फंडिंग मिले उस दिन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट शूट ऑन मी। डन सर। डन, ओके। आपको मेल वगैरह सब मिल गया, इनविटेशन हाँ वगैरह? हाँ जी सर। ओके, कौन था आपका कम्युनिटी मैनेजर, कौन है आपका? सर माइन इज रौनक। रौनक, ओके। सो वी हैव 2 अमित कुमार जैन राइट नाउ। प्रोबेबली वो एक डिसकंटिन्यू हो गया होगा। कोई नहीं, ठीक है गाइस। आपको मेरे बारे में कुछ और जानना है? क्योंकि जैसे अभी ईशांत ने बताया था, दे आर बिल्डिंग ओयो फॉर रेस्टोरेंट्स, तो मेरा प्रायर जो स्टार्टअप था दैट इज द सेम what I built revised you. We have 1200 tuition centers and it's a pay per according, and we were the OYO of tuition centers। 1200 ट्यूशन सेंटर से जो आप कर रहे हैं, हम भी उनकी सारी चीजों को ठीक करते थे। एक ट्यूशन सेंटर की उनके लिए स्टूडेंट्स लेके आते थे, उनके ऑनलाइन सेशंस वगैरह सब। ठीक है, तो इफ यू वांट टू if you have any question apart from the funding and all, you can shoot. Can we connect somewhere else, sir? I'll meet you on 4th of November. Okay, 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 definitely. okay. देखिए मैं Also, इंडिया you में will कम also you will also help in मतलब pitch deck जो हमारा जैसे अभी बना हुआ है, तो उसको और मतलब थोड़ा रीडिफाइन करने में। our team will be there। ठीक है, वो आपको पूरा दिखाएगी, जो भी आप जब भी आप लॉग इन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ 100 स्टार्टअप्स को बुलाना, आई थिंक 78-74 स्टार्टअप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक Okay, है, और इसलिए हम सेशंस लगातार चलाते हैं, एक एक दिन में 2-2 3-3 सेशंस चलते हैं। ठीक है, और okay, जो नए ज्वाइनिंग होते हैं उनको मैं एक बार पर्सनली देता हूँ। मैं और पर्सनली इंडिया में मिल लेता, पर राइट नाउ आई एम नॉट इन इंडिया। okay, ठीक है, आई विल बी देयर ऑन 4th। ठीक है, yeah, और आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट क्रिएट योर आईडी ऑन आवर वेबसाइट। डन Okay, सर। sure. there are almost 700 plus investors. You can just share, you can connect with them, you can send them a friend request. So it's a chilling kind of thing. तो हमारा सेशन भी, हमने जो इवेंट रखा वो भी थोड़ा चिलिंग मोड पे रखा है, कि वहाँ पे 6 बजे तक सारी फंडिंग की बातें चलेंगी। उसके बाद ओवर द ड्रिंक्स, आई होप यू ऑल ड्रिंक्स, तो उसके बाद ओवर द ड्रिंक यू कैन जस्ट टॉक विद देम ऑन अ वेरी चिल मोड। यू कैन आस्क फॉर देयर पर्सनल नंबर एंड ऑल, वॉट एवर यू वांट। डन सर। ओके, सो आई होप मेल में आपको सारे प्रायर इवेंट्स की और वीडियोस वगैरह मिल गई होंगी। ठीक है, वी हेल्प यू इन योर मार्केटिंग आल्सो, और योर स्टोरी एंड इंडिया टुडे एंड अदर मीडिया पब्लिकेशन विल बी गोइंग टू कवर। तो आपको एक मीडिया हाइप मिल जाएगी हर स्टार्टअप को। ठीक Okay, है, यूजुअली सारी चीजें जितनी भी होनी। डन। ओके, सो
Your community manager will share my personal ID to you all. Sure, sir. Okay, basically it's ceo@firstfunding.in. If you have any question, you can just directly send it to me. Okay. Done, sir. Okay. Chalice. I All hope right. to see you all soon. Same, sir. Thank you. Thank you. Thank you.